Good morning. Today we are here to discuss about tissues. As you know that a group of cells that are specialized to perform a particular function forms a tissue. Tissues are mainly classified into two types: plant tissues and animal tissues. Plant tissues, as you know, plants do not move, they are stationary, they are fixed. So most of the tissues they have are supportive. मतलब plants के tissues supportive हैं, which provides them with structural strength. Most of these tissues are dead, since dead cells can provide mechanical strength as easily as live ones and need less maintenance. तो plants में ज़्यादातर tissues dead हैं. Animals on the other hand move around in search of food, mates and shelter. They consume more energy as compared to plants. So most of the tissues they contain are living. Plant tissues जो हैं ज़्यादातर dead हैं और animals में ज़्यादातर living हैं. और एक और डिफरेंस है कि प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो थ्रू आउट देयर लाइफ होती है, जबकि एनिमल्स में थ्रू आउट देयर लाइफ नहीं होती, ग्रोथ लिमिटेड होती है. प्लांट्स में ग्रोथ लिमिटेड होती है टू अ सर्टेन रीजन्स, व्हाइल दिस इज नॉट सो इन एनिमल्स. मतलब प्लांट में ग्रोथ जो है कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पे देखी जाएगी, एनिमल्स में ऐसा नहीं है. There are some tissues in plants that divide throughout their life. These tissues are localized in certain regions. Based on the dividing capacity of the tissue, various plant tissues can be classified as growing or meristematic tissue and मतलब plants को उनकी dividing capacity के basis पर दो ग्रुप में बांटा गया है. एक है meristematic, दूसरा है permanent. मैरिस्मेटिक टिश्यूज थ्रू आउट लाइफ वो डिवाइड होते रहते हैं, दे हैव एबिलिटी टू डिवाइड, जबकि परमानेंट टिश्यूज अपनी डिवाइडिंग एबिलिटी को लूज कर देते हैं. द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इज फार मोर स्पेशलाइज्ड देन द लोकलाइज्ड इन कॉम्प्लेक्स एनिमल्स देन इवन इन वेरी कॉम्प्लेक्स प्लांट्स. सो यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम वो ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है, ज़्यादा लोकलाइज्ड है कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में एज कंपेयर टू कॉम्प्लेक्स प्लांट्स. So this fundamental difference reflects that the different modes of life pursued by these two major groups of organisms. तो animals और plants में अलग अलग मेथड है लाइफ को परस्यू करने के लिए. अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स जो हैं वो उनके जो टिश्यूज होते हैं वो दो तरह के होते हैं, मेरिस्मेटिक एंड परमानेंट. मेरिस्मेटिक टिश्यू तीन तरह के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम. जबकि परमानेंट टिश्यूज दो तरह के होते हैं, एक होता है जाइलम, एक होता है सिंपल टिश्यू और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू. सिंपल टिश्यू आपने पढ़ा पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जबकि कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है वो जाइलम एंड फ्लोएम है. मेरिस्मेटिक टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ इन प्लांट्स. Cells in these tissues can divide and form new cells. मेरिस्मेटिक टिश्यूज के 3 टाइप्स हमने बताए, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी. एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ द स्टेम एंड रूट्स एंड increases the length of the plant. Lateral meristem, which is also known as cambium, is present beneath the bark, है ना, और लेटरल साइड पर. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ इन द ग्रिथ ऑफ ट्रंक. इंटरकैलरी मेरिस्टेम is present at the internodes or base of the leaves and increases the length between the nodes. लॉन्गिट्यूडनल लेंथ बढ़ाने के काम आती है. ये डायग्राम देखिए,
apical meristem, intercalary meristem, and lateral meristem. Permanent tissues, cells of meristematic tissue change their shape and size to get specialized in performing other function in plant body. This process is known as differentiation. ठीक, ये वाली बात. They lose the ability to divide and they form a permanent tissue. So once the cells of meristematic tissue divide to a certain extent, they become specialized for a particular function. तो permanent tissues दो तरह के होते हैं, simple and complex. Simple में क्या होता है, few layer of cells form the basic packing tissue. So this type of tissue is composed of same type of cells. ये याद रखना, permanent में दो तरह के हम पढ़ रहे हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स. सिंपल में एक ही तरह की सेल्स होती हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स में मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स आर देयर. तो सिंपल में रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं विथ थिन सेल वॉल्स, जो पैरेन्काइमा के बारे में हम पढ़ेंगे. तो तीन तरह के सिंपल टिश्यूज हम पढ़ेंगे. सिंपल परमानेंट टिश्यूज, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा. पैरेन्काइमा जो है वो, इसकी जो सेल्स होती हैं वो लिविंग होती हैं, ओवल होती हैं, इलोंगेटेड होती हैं, लूजली पैक्ड होती हैं, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं बीच में, और फॉर्मिंग बेसिक पैकिंग ऑफ टिश्यू एंड फाउंड थ्रू आउट द प्लांट बॉडी. इसके फंक्शंस क्या हैं? दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट बॉडी, दे स्टोर फूड एंड न्यूट्रिएंट्स इन वैक्यूल्स. पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, उनको हम क्लोरेन्काइमा बोलते हैं. तो पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल है वो क्लोरेन्काइमा कहलाएगा. और एक्वेटिक प्लांट्स में जहाँ पे लार्ज एयर कैविटीज होती हैं पैरेन्काइमा में, वो प्रोवाइड करती है बायोन्सी टू द प्लांट्स टू हेल्प देम फ्लोट. सच पैरेन्काइमा टाइप इज कॉल्ड एरेन्काइमा. अब नेक्स्ट टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू है प्लांट का, कोलेन्काइमा. ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है. तो सेल्स लिविंग है, टाइटली पैक्ड है विद नो इंटरसेलुलर स्पेसेस. दे आर फाउंड बिलो एपिडर्मिस इन लीव्स एंड स्टेम्स. इसके क्या फंक्शन है? ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट सो दैट दे कैन बेंड विदाउट ब्रेकिंग. ठीक, इसमें आप ये डायग्राम में देखिएगा, ये इंटरसेलुलर स्पेसेस ये पैरेन्काइमा का है दोनों, और इधर वाला राइट साइड वाला जो इसका ये वाला जो है ये कोलेन्काइमा है. थिकनिंग देख रहे हैं आप कॉर्नर्स पर, एक टीएस है, एक एलएस है, और ये स्क्लेरेन्काइमा है. अभी हम स्क्लेरेन्काइमा के बारे में पढ़ेंगे. स्क्लेरेन्काइमा क्या है? स्क्लेरेन्काइमा सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं. सेल्स ऑफ स्क्लेरेन्काइमा आर डेड. दे आर नैरो एंड इलोंगेटेड. ये आप देख रहे हो, ये इलोंगेटेड है. और सेल वॉल जो है वो कंपोज्ड होती हैं लिग्निन से, which makes it hard. So sclerenchyma found around vascular bundles, veins of leaves, in hard covering of seeds and nuts. Example है जैसे कोकोनट हस्क. कोकोनट हस्क में स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू से बना है. कोकोनट हस्क जो छिलका होता है कोकोनट का, फंक्शन क्या है कि ये प्रोवाइड करता है हार्डनेस एंड स्टिफनेस टू डिफरेंट पार्ट्स, और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. और प्लांट में प्रोटेक्टिव टिश्यूज की अगर हम बात करें तो प्रोटेक्टिव टिश्यूज में दो तरह के प्रोटेक्टिव टिश्यूज आप देखोगे, एक एपिडर्मिस, एक कॉर्क. एपिडर्मिस क्या होती है? एपिडर्मिस टिश्यू कवर्स द एंटायर बॉडी ऑफ द प्लांट. दे प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम इंजरी, germs and water loss.
Cells of epidermal tissue form a continuous layer without intercellular spaces. यहाँ पर स्टोमेटा भी आप देखेंगे. स्टोमेटा टाइनी ओपनिंग्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपिरेशन. तो स्टोमेटा, यहाँ पे आप गार्ड सेल्स देख रहे हो, ये एपिडर्मल सेल्स देख रहे हो, ये वाली लेटरल व्यू है, ये सरफेस व्यू है, ये लेटरल व्यू है. सो जो स्टोमेटा है वो टाइनी ओपनिंग्स हैं ऑन एपिडर्मल लेयर ऑफ लीफ एंड सॉफ्ट पार्ट्स, facilitate the gaseous exchange and transpiration, which regulate the temperature of the plant body. Desert plants में एपिडर्मिस में एक वाटर प्रूफ लेयर होती है जो उसको हम बोलते हैं क्यूटिन से बनी होती है, क्यूटिकल. ये थिकर होती है टू रिड्यूस वाटर लॉस ऑफ द वाटर ड्यू टू ट्रांसपिरेशन. सो इन डेजर्ट प्लांट्स एपिडर्मिस एंड क्यूटिन. क्यूटिन क्या है? अ वाटर प्रूफ वैक्सी सब्सटेंस सिक्रेटेड बाय एपिडर्मिस. ये थिकर बनाता है ताकि वाटर लॉस रुक जाए. ठीक, तो एपिडर्मल सेल्स जो होती हैं उनका क्या काम होता है? अगर वो रूट्स में है तो उनका काम एब्जॉर्प्शन है. रूट हेयर क्यों होते हैं? अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बोलिएगा सरफेस एरिया बढ़ाते हैं ताकि ज्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन हो जाए. ठीक, तो जैसे जैसे प्लांट्स ग्रो करते हैं तो जो आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू होती है वो सर्टेन चेंजेस में अंडरगॉन होता है. A strip of secondary meristem replaces the epidermis of the stems and cells on the outside are cut off. बहुत सारी सेल्स कट ऑफ हो जाती हैं और ये बार्क बनाती हैं, बार्क ऑफ द ट्री, थिक कॉर्क. ये डेड सेल से बनती है, कॉम्पैक्टली अरेंज होती है विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस. और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनके पास एक इम्पॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंस होता है जिसको सुब्रेनिन बोलते हैं in their walls that makes them impervious to gaseous and water. Next is, ये आप देख रहे हो मल्टी लेयर्स ना, कॉर्क सेल्स. ठीक है, तो यहाँ पर ये रप्चर एपिडर्मिस दिख रही है. तो कॉर्क टिश्यू प्रोटेक्शन का काम करते हैं इंजरी से, जर्म से, वाटर लॉस से. कॉर्क being light in weight is used for making several products like bottle stopper and shuttlecock. तो स्पोर्ट्स गुड्स बनाने में काम आ रहा है ना, और स्टॉपर बनाने में काम आ रहा है. तो दिस इज ऑल फॉर दी प्लांट टिश्यूज. कॉम्प्लेक्स प्लांट टिश्यूज हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस.